قاسمی صاحب، ان کا ہم استقبال کرتے ہیں اور شکر گزار ہیں کہ حضرت ہمارے درمیان تشریف لائے۔ بہرحال میں حضرت والا سے بڑے ادب و احترام کے ساتھ دعوت دیتی ہوں کہ حضرت تشریف لائے اور اپنے ناصحانہ کلمات سے ہم سب کو نصیحت فرمائیں۔ حضرت تشریف لائے۔ محسن پبلک اسکول میں یہ میری دوسری یا تیسری حاضری ہے۔ ابھی کافی دیر سے میں بچوں کے ذریعے سے جو پروگرام پیش کیے جا رہے تھے اسے سن رہا تھا، اور خاص طور پہ ابھی جو دو بچے ایک ڈرامے کے ذریعے سے ایک بات جو دینا چاہ رہے تھے لوگوں کے بیچ، ایک پیغام جو پیش کرنا چاہ رہے تھے کہ گٹکھا، بیڑی اور اس طرح کی چیزیں جو سرتی، پان مسالہ، اس سے ہمارے قوم کے افراد، نوجوان، بوڑھے، پڑھنے پڑھانے والے بھی اور نہ پڑھنے پڑھانے والے بھی اس سے اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، یہ بیماریوں کی طرف لے جاتی ہے۔ انہی باتوں میں کچھ باتوں کو میں جوڑنا چاہتا ہوں۔ ہمارے بیچ شاید کچھ معززین تشریف لا چکے ہیں، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں۔ تشریف لا۔ جی، اب میں اپنی بات کو جاری رکھتا ہوا، بات یہاں سے شروع کرنی ہے کہ جس زمانے کے اندر آج ہم جی رہے ہیں یہ زمانہ انفارمیشن کا ہے، معلومات کا زمانہ ہے، اور اس زمانے کو اگر جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور تعلیمات کی روشنی میں اگر ہم بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسے ایجوکیشن کا زمانہ دینا پڑے گا، اسے ہمیں ایجوکیشن کا زمانہ بنانا پڑے گا۔ انفارمیشن بالکل ڈیفرنٹ چیز ہوتی ہے اور ایجوکیشن بالکل ہی الگ چیز ہوتی ہے، دونوں میں فرق ہے۔ آج کے زمانے میں انفارمیشن کی بمبارڈمنٹ ہے، ایک کوئی معلومات آپ لینا چاہتے ہیں، آپ کے لیے گوگل ہے، آپ کے لیے یوٹیوب ہے، آپ اس پر سرچ کریں اور ساری دنیا کی معلومات آپ تک مل سکتی ہیں، لیکن انسان معلومات سے نہیں بنتا، انسان تعلیم سے بنتا ہے، ایجوکیشن سے بنتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، انما بعثت معلما، کہ میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں ایجوکیٹر بنا کر بھیجا گیا ہوں، میں وہ شخص بنا کر بھیجا گیا ہوں جو تعلیم کو عام کرے گا، انفارمیشن کو نہیں۔ تعلیم میں انفارمیشن تو ہے، لیکن تعلیم کے ذریعے سے ہوتا کیا ہے؟ ایک بچہ جب بچپن سے تھوڑا اوپر اٹھتا ہے تو اس کا مزاج بننا شروع ہوتا ہے، اس کا مذاق بننا شروع ہوتا ہے۔ تعلیم اگر آتی ہے تو اس بچے کا مزاج مثبت مزاج بنتا ہے، اس بچے کا مزاج مفید مزاج بنتا ہے، اس بچے کا مزاج کام والا مزاج بنتا ہے، اس بچے کا مزاج ایسا مزاج بنتا ہے جو لوگوں کے لیے خیر خواہانہ مزاج لے کر اٹھتا ہے۔ اگر یہ بچہ صرف انفارمیشن لے رہا ہے، گوگل سے پڑھنے والا لڑکا، یوٹیوب سے انفارمیشن کلیکٹ کرنے والا لڑکا، ہو سکتا ہے اس کے دماغ کے اندر انفارمیشن کی ایک گٹھری ہو، لیکن کیا یہ دماغ کی انفارمیشن گوگل کے اتنے بڑے سرچ انجن کی انفارمیشن سے زیادہ ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ ہمارے دماغ کے اندر اتنی انفارمیشن بہر کیف اکٹھا نہیں ہو سکتی جتنی گوگل جیسے سرچ انجن کے پاس ہے۔ ہم اپنے آپ کا مقابلہ گوگل اور یوٹیوب سے نہ کریں، بلکہ ہمیں جو کرنا ہوگا وہ ہمیں تعلیم کے ذریعے سے مزین ہو کر، تعلیم اپنی زندگی کے اندر لا کر اپنے آپ کو ایک مفید انسان بنانا، ایک کارآمد انسان بنانا، ایک ایسا انسان بنانا جسے سماج کی ضرورت ہو، اس کی ضرورت ہے، اور یہ صرف اور صرف ایجوکیشن سے آتی ہے، تعلیم سے آتی ہے، انفارمیشن سے نہیں آتی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں کیا کیا تھا؟ صحابہ کرام کا اتنا بڑا گروہ جن کے بارے میں ہم لوگ کتابوں کے اندر پڑھتے ہیں کہ تقریباً 1.25 لاکھ صحابہ، چونکہ ہم لوگوں نے عام طور پر یہ پڑھا، میں تھوڑا سا اور آگے جانا چاہوں گا۔ اس زمانے کے اندر عرب کی آبادی آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو لاکھوں میں آبادی تھی۔ سچائی یہ تھی کہ 1.25 لاکھ صحابہ وہ صحابہ تھے
जो जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज्जतुल वदा के मौके पर जो आखिरी हज जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के के लिए जो करने के लिए गए हैं, उसमें जो सहाबा आपके साथ थे वो 1.25 लाख की तादाद आती है। दूसरी रिवायात में 1,40,000 सहाबा की तादाद आती है। लेकिन ये वो सहाबा थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हज्जतुल वदा में साथ थे। सारे सहाबा पूरे खित्ते अरब से साथ चलकर नहीं आए थे, यहाँ तक कि मदीनतुल मुनव्वरा भी पूरा का पूरा खाली नहीं हुआ था। वहाँ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जानशीन सहाबा को छोड़कर आए थे। अतराफ व अकनाफ से सारे सहाबा मिलकर नहीं आए थे। इसका मतलब यह है कि सहाबा की तादाद और ज्यादा थी, 1.25 लाख नहीं थी, 1,40,000 नहीं थी, बल्कि ज्यादा थी। इतनी ज्यादा सहाबा को हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुखातब करके ये कह रहे हैं, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा ये स्टार्स हैं, ये तारे हैं, ये सितारे हैं, इनमें से किसी के भी राह पर तुम चलोगे तो राहयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे, मंजिलें तुम्हें मिलकर रहेंगी। इस वसूल को एतमाद के साथ, इस भरोसे के साथ जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीके से सहाबा को कहते हैं, क्योंकि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम था कि मैंने इन सहाबा के दिमागों में, इनके मिजाजों में, इनकी फिक्रों में, इनकी अमल में जो चीज पेवस्त की है वो इंफॉर्मेशन नहीं थी, मालूमात नहीं थी, बल्कि तालीम को इस तरीके से घुलाकर उनके अंदर पेवस्त किया गया कि वो तालीम उन्हें एक मुफीद और अच्छा इंसान बनाकर पेश करती है। आज उसी की जरूरत है। आज हो क्या रहा है कि हम साइंस की क्लास में बैठते हैं, साइंस में एक सबक पढ़ते हैं, सफाई बड़ी अच्छी चीज है, एक दिन भी हम मनाते हैं सफाई का, लेकिन जब जिंदगी की बात आती है तो जिंदगी में हम उस सफाई का एहतमाम नहीं कर पाते। जहां सफाई की बात होगी तो हमेशा हम झाड़ू वाले की तरफ ही नजर उठा के देखेंगे, वही आएगा, वही सफाई का एहतमाम करेगा, हम जो चीज हाथों में होगी वही गिरा दिया करेंगे। हम सफाई का सबक पढ़ने के बाद अपनी जिंदगी में सफाई का एहतमाम नहीं कर पाते, क्योंकि हमने इंफॉर्मेशन ली, किताबों ने इंफॉर्मेशन दी, असातिज़ा ने इस तरीके से हमें पढ़ाया जैसे इंफॉर्मेशन पास ऑन कर दी है। इंफॉर्मेशन के पास ऑन करने से, इंफॉर्मेशन को आगे बढ़ा देने से बच्चों की तरबियत नहीं होती, बच्चों के मिजाज में सफाई कन्वर्ट नहीं होती, उनके मिजाज का हिस्सा नहीं बनती, और ये बच्चा सिर्फ तालीम तो ये लेकर उठता है कि सफाई बड़ी अच्छी चीज है, सफाई बदलेगी नहीं। दूसरी मिसाल आप ले लीजिए, शुरू में बच्चा क्लास 6 में पहुंचता है साइंस की, और वहाँ क्लास 6 में उसको बताया जाता है कि हमें क्या चीज खानी चाहिए, हमारी बॉडी के लिए क्या चीजें मुफीद है, हमें आयरन कितना मिलना चाहिए, कैल्शियम कितना मिलना चाहिए, प्रोटीन्स कितनी मिलनी चाहिए, विटामिन कितने मिलने चाहिए। ये हम पढ़ते हैं क्लास 6 की साइंस में, लेकिन हमारी जिंदगी में इस पर कोई अमल नहीं होता। हमारे घर के जो खाने का मेनू बनता है, हमारे घर में जो ग़िज़ाएं तैयार की जाती हैं, उसमें जायके का, कामो दहन के जायके को तो हम ध्यान में रखते हैं, इस बात का ध्यान कतान नहीं रखते कि जो साइंस में हमने क्लास 6, 7 और 8 की किताबों में पढ़ा था कि हमारी बॉडी की क्या रिक्वायरमेंट्स है, उसके एतबार से मेरे घर के मेनू बने खाने का, ऐसा कुछ नहीं है। हैरत तो इस बात की है कि जो माएं अपने बच्चों और बच्चियों को दिल से लगाए फिरती रहती हैं और उनकी हर चीज की बड़ी ही मोहब्बत के साथ पूरा करने की कोशिश करती हैं। आप बच्चों की टिफिन खोल के देखिए, आपको हैरत होगी, 90% नहीं 99% बच्चों के टिफिन के अंदर मैगियां निकलती हैं, बर्गर्स निकलते हैं, पास्ते निकलते हैं। माएं इतना वक्त अपने बच्चों और लाडलों को देना नहीं चाहती, जिनको इंजीनियर और डॉक्टर बनाने का हम ख्वाब लेके उठते हैं, जिनको एक बड़ा इंसान बनाने का ख्वाब लेकर हम परवान चढ़ते हैं, उनके लिए वो माँ जो अपने बच्चे के लिए सुख दुख, अपना चैन और अपना सुख क्या कुर्बान कर देती है, वो माँ आज की माँ कैसी हो गई है जो उसे बर्गर और मैगी बना के भेज देती है। 2 घंटे के बाद उस मैगी की क्या हालत होगी, खाने के लायक रहती है, बच्चे खाते हैं। मैं अभी जल्दी अपने यहाँ देखा टिफिन में, मुझे अजीब सी होगी कि ये बच्चे क्या लेके आ रहे हैं। माएँ आधा घंटा पहले उठकर उनकी टिफिन भी तैयार करने के लिए नहीं है। हम किस चीज की स्कूल में हमने भेज दिया है, और ये जो इंफॉर्मेशन मालूमात मिल रही है, इससे हमारी नस्लें परवान चढ़ेंगी, इससे हमारी नस्लें वाक़तन बनेंगी, इससे वाक़तन कोई ऐसी नस्ल आएगी जो कौम और समाज के काम आएगी। ऐसा कतन नहीं होना है, क्योंकि हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। खुदारा हम इस बात की कोशिश करें, खुदारा हम इस
इस बात की कोशिश करें कि इंफॉर्मेशन के बजाय, मालूमात के बजाय वो चीजें अमल का पार्ट बने, इसके लिए कोशिश करें। वो मिजाज का हिस्सा बने, वो फिक्र का हिस्सा बने, वो अमल का हिस्सा बने, इसकी कोशिश करें। अगर इसमें हम 10% भी कामयाब हो गए तो इंशाअल्लाह हमारी नस्लें किसी काम की होंगी, वरना गूगल और गूगल से आगे अभी रोबोट इंजीनियर्स जो आ रहे हैं, जो रोबोटिक मशीनरी आ रही हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आ रही हैं, ऐसी जहानतें आ रही हैं, ऐसी मशीनरियां होंगी जो ऑटोमेटिक वो सारा काम कर रही होंगी जो कोई इंसान आज कर रहा होता है। जैसे इंसान सोच रहा होता है उससे आगे का वो सोच रही होती हैं। फिर मशीनरी और इंसान में डिफरेंस कहाँ आएगा? कहाँ हो ऐसी जगह पेश आएगी जहां हम इंसान मशीनरियों को मात देंगे, उनको उनके कंपटीशन में हम उन्हें पीछे छोड़ेंगे। सिर्फ एक जगह पे हम छोड़ सकते हैं। मशीनरियों में होता क्या है, किसी मशीन में जो चीज फीड की गई है उतनी ही चीज निकलती है। एक स्विच आपने बनाया, उस स्विच को ऑन की शक्ल में आपने एक उसे मैसेज दिया है कि जब आप दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा, जब आप उसे ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। इससे हटकर तीसरा काम वो नहीं कर सकता। इंसानी दिमाग में क्या खास बात है? तख्लीकी मिजाज इंसान में होता है, क्रिएटिविटी होती है, नई चीजें सोचकर निकालना, ये इंसान के पास इंसानी इम्तियाज है और इसी इम्तियाज पर खास तौर पर हमें काम करने की जरूरत है। वरना इंफॉर्मेशन मशीनरियां देंगी, सर्च इंजन देंगे, और जहां तक काम करने की बात है हम अपने 2 हाथों और 2 पैरों से और इतने मुख्तसर से दिमाग से वो काम नहीं कर सकते जो आने वाले जमाने में, बल्कि शुरुआत हो चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, रोबोटिक सिस्टम के जरिए से, कि फिर हमारे आने वाली नस्लें हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेंगी और उनके लिए कोई फ्यूचर, कोई मुस्तकबिल नहीं होगा, और डिग्रियां लेकर आएंगी और उन डिग्रियों से कुछ नहीं होगा। हम बाज़ दफा कागजों पर इतना एतमाद और भरोसा करते हैं कि बच्चा इंजीनियर हो गया, बच्चा डॉक्टर हो गया, पता नहीं क्या कर लेगा। जिस डिग्री को आप लेकर आ रहे हैं, आने वाले जमाने में आपके डिग्रियों की कोई वैल्यू नहीं होने जा रही है, आपके टैलेंट की वैल्यू होने जा रही है। आपके पास क्रिएटिविटी कितनी है, आपके पास नई सोच कैसी है, आपके पास क्या कुछ नया निकालने का है, सोल्यूशन निकालने वाला दिमाग है कि नहीं है। प्रॉब्लम्स तो हजार हैं, उन प्रॉब्लम्स के पास सोल्यूशन है कि नहीं है। मैं आखिरी बात कह के आपसे जुदा होना चाहूंगा। हम जिस वक्त बच्चों से ये पूछते हैं बेटा आप बड़े होकर क्या बनोगे, अक्सर हम ये पूछते हैं कि बेटा क्या बनोगे, तो बेटा कहता है हम डॉक्टर बनेंगे। बेटा क्या बनोगे, बेटा कहता है हम इंजीनियर बनेंगे। या कभी कभी हम अपने बच्चों के सामने अपनी ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि बेटा मेरी दिली तमन्ना है कि तुम IAS अफसर बनो, कल को DM बन के क्या है लोगों की खिदमत करो। हमें ये तरीक़ेकार तब्दील करना होगा। हमें बच्चों से ये सोल्यूशन ये पूछना होगा कि बेटा आज दुनिया में ये प्रॉब्लम है, आज दुनिया में ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए तुम जब पढ़ लिख कर आगे बढ़ोगे तो क्या तुम इस प्रॉब्लम में से कोई प्रॉब्लम हल करोगे? डॉक्टर बनना कोई बड़ी बात नहीं है। आने वाले जमाने में आप डॉक्टर बनकर आएंगे और आपका हॉस्पिटल नहीं चलेगा। दुनिया में प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, उनमें से किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अगर आप लेकर आएंगे, दुनिया आपको हाथों पे बैठाएगी, आंखों पे बैठाएगी, सर का ताज बनाएगी, क्योंकि दुनिया को प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए। अपने बच्चे को ऐसा दिमाग दीजिए, ऐसी अकल दीजिए, ऐसी सोच दीजिए, ऐसी तालीम दीजिए कि उसका दिमाग घुट घुट कर सिकुड़ न जाए, बल्कि उसे बाल ऊपर दीजिए, वो आगे बढ़े और अपने दिमाग से नए सॉल्यूशन निकाल कर ले आए। वरना डॉक्टर तो बनेगा, किसी प्रॉब्लम का हल उसके पास नहीं होगा, किसी प्रॉब्लम का उसके पास हल नहीं होगा। आने वाली नस्लों के पास हल होने चाहिए, क्योंकि दुनिया में हर वक्त प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जाती रहेंगी। उनके हल जिनके पास होंगे वो लोग आगे जाएंगे, और जिनके पास हल नहीं होंगे वो पीछे जाएंगे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को भी देखिए, आप आए थे तो प्रॉब्लम्स थी, समाज में थी, सियासत में थी, इकोनॉमी में थी, लॉ में थी, तालीम में थी, हर जगह थी। हुजूर ने क्या पेश किया? हल पेश किया। आप सल्लम पे कुर्बान जाइए, आपने सॉल्यूशन पेश किया, दुनिया के मसाइल का हल दिखाया, दुनिया कदमों पर आई। इसलिए आज हम उनके मुतवाले, हम उनके नाम लेवा, हम उनके उम्मती इस बात को तय करके उठें कि अपने आप को भी हल करने वाला, प्रॉब्लम्स को हल करने वाला बनाएंगे, और अपनी नस्लों की भी तालीम और तरबियत ऐसे अंदाज से देंगे कि वो आगे चलकर प्रॉब्लम्स को हल करेंगी, ना कि खुद प्रॉब्लम बनेंगी।
اس شعر کے ساتھ میں آپ سے جدا ہونا چاہتا ہوں بس اس بات کے ساتھ کہ دل جلاؤ اگر چراغ بجھیں، دل جلاؤ اگر چراغ بجھیں، روشنی کم نہ ہو محبت کی۔ اگر اس طریقے سے چراغ آپ جلاتے رہیں گے تو انشاءاللہ ضرور اندھیرے پاش پاش ہوں گے اور یقیناً اجالا ہوگا۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم۔